रीडेवलपमेंट में आपसी विश्वास और पारदर्शिता मूल मंत्र। आईसी कॉलोनी की एक पुरानी सोसाइटी में रहने वालों को नए घर का सपना पूरा। सालिडागो डेवलपर से लोग खुश। महासेवा न्यूज व एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुंबई के बोरीवली में डेवलपर की पारदर्शिता और सूझबूझ के प्रयासों से लोगों के घर का सपना पूरा हुआ है। जी हाँ, बोरीवली आईसी कॉलोनी जैसे प्राइम लोकेशन पर पहले यहाँ 4 मंजिला पुरानी बिल्डिंग थी, जो अब 13 मंजिला दी केसो बनकर तैयार है। केसो का मतलब होता है महल, और यह महल को डेवलप किया है सालिडागो जयेश चौहान ग्रुप ने। यह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एएसआई की परमिशन की वजह से थोड़ा डिले हुआ। एएसआई का मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। बता दें कि यहाँ नजदीक ही पुरातन मंडवेश्वर गुफा है, जिस वजह से एएसआई की परमिशन की जरूरत होती है और इसके लिए सीधे दिल्ली जाना पड़ता है। इस दौरान सोसाइटी के कुछ मेंबर्स की नकारात्मक सोच की वजह से यह प्रोजेक्ट चर्चा में रहा, लेकिन आखिरकार डेवलपर की सूझबूझ और सोसाइटी के पॉजिटिव मेंबर की सहयोग से उन सभी पुराने रहने वालों को अपने हक का घर मिलने वाला है और उन्होंने बिल्डिंग साइट पर जाकर सैंपल फ्लैट देखकर अपनी खुशी जाहिर की और घर का सपना पूरा होने की बात कही। My name is Janice, Mrs. Janice Gonzalez. I'm Jason De Silva. No, we feel very good. Being my dad has worked, and it's beautiful to have the building come up from the end. I think it was my mom and dad's reality to have this house. My dad is no more, but my mom, she's like waiting, to see when the house will be ready, when I will come and live in this house. It's been so many years now, and I think we flew yesterday only from Dubai, and we've come, because she wanted to see how the house is. And I think, she's at peace now that this is how the house is that she's going to live. I think we are a family, and I think we will make this house a home. For cherished memories and for living our joyous moments together as a family. So we are really wishing all the best for everybody, and we are looking forward to come and stay in this house of ours. Abraham. So far the construction is good. Now it is feeling better. Previously it was 2 BHK, now it will become 3 BHK. Christopher Borges. Charlotte. Oh, it's an excellent feeling. Too good. We are so very happy, and we couldn't have asked for a better time for this to happen. This is indeed a dream come true. Feeling on top of the world, and just to come here and experience how my house is going to look in future, it's an incredible feeling. The house is done up in an excellent manner. The room, the living room, the kitchen, the bedroom is all splendid. Thank you to Jayesh and Hema for this amazing house. पुरानी बिल्डिंग में रहने वाले फर्नांडिस फैमिली की यह दोनों बेटियां बहुत खुश है, क्योंकि उनके नए घर में उनको सेपरेट स्टडी रूम मिलने वाला है। Hello, my name is Tasha Fernandez. And I'm Samaira Fernandez. Our dream is like a normal teenager, like to have a house that is aesthetic, looks good, and everything like that. To have like our privacy. We get our privacy while having a new house and our room. It's even a lot easier when you have your own room. You can study, you can concentrate, you can do a lot of things when you just have your own room. Both are sisters? Yes. I feel really happy, and I just can't wait to come and stay over here and like spend my years in this new house, and also make many memories in this new house. And I'm very happy and very delightful that I can be in this house and I'm getting the opportunity to stay here. I'm very happy with everything. Sharing our old memories with the old house, and then also the same thing with the new house. So it's just like a dream come true that we have been waiting for a long time. सोसाइटी के सेक्रेटरी नवीन चंद का कहना है, सकारात्मक सोच और आपसी समझ के साथ अपने घर का सपना पूरा किया जा सकता है। Naveen Chandra Kundapur. Actually, here there was a lot of practical difficulties. Any society go for redevelopment, that always have the one way or the other negativity, positive वो सब चलता रहता. But we overcome all this, and today the dream come reality, more or less. I think 120, because I am not an architect, I am only a commercial man, or means but I come to
know that this is 120 or 130, whatever it is, area, because of the ये है ना अपना मंडपेश्वर गुफा or whatever it is, ASI का, तो they won't give the height. मेरा 4 माले का बिल्डिंग था, exactly I'm telling you, and 4 माल बिल्डिंग अगर हमको 8 माले का मिलता है, maximum I am going to get 5-10 years back only 8 floor. And builder won't make 8 floor. They will go second 7 only because 2 lifts are coming. And second major problem in this building, we have to shell out 1,100 meter for government. All the 3 places, road, all the 3 places are gone from this area. ये अपना सोसाइटी का एरिया गया. आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट इन बॉम्बे मेरे ख्याल से 1100 मीटर. आप कैलकुलेट करो क्या उसका ये रोड के लिए गया साहब. आउट ऑफ 4,000 1,100 माइनस करो, नियरली 25% गॉन टू द रोड, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. अभी ये 60 का रोड आता है, इधर 30 फीट. ये अपने बिल्डिंग में 2 जगह में रोड है. All the 3 road. I don't think IC colony or anywhere 3 जगह में कट होता है, and that too from society tariffs. I don't think. Even at 79 now, I'm within 2-3 months, I will be 80. 80 year का I taken the responsibility to become a secretary also. Earlier also I was handling the society work, various category. ये है वो है whatever it is, but now once again I taken over because only thing that it should move. There you see what are happen. Anybody become a secretary is okay, but always negativity is बहुत रहता है. तो अभी देखिए ना, बिल्डर ऐसा किया तो ऐसा किया, नेगेटिविटी होता रहेगा. आई एम नॉट फॉर बिल्डर, फॉरगेट इट. तो क्वेश्चन क्या, वी हैव टू बी मूव विद द पीसफुल. शांति से कर चलो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलो, तो हमारा काम हो जाएगा. अब जानते हैं डेवलपर की आप बीती, जिनकी पारदर्शिता और सूझबूझ से आज सोसाइटी के पुराने 57 रहवासियों को बड़े घर का सपना पूरा हो रहा है और डेवलपर ने अपनी सभी जिम्मेदारी पूरा करने की बात कही. हमने बात की सालीडागो की डायरेक्टर हेमा जयेश चौहान से. हम लोग आए थे अपनी, जैसे हर एक रीडेवलपमेंट का प्रोसेस रहता है, हम उसी प्रोसेस से आए हुए थे. तो जैसे टेंडरिंग होता है, उसमें से सिलेक्शन होता है, एंड वी वर वन ऑफ दोज डेवलपर who got selected through a tender process. So देखा जाए तो ये रीडेवलपमेंट में हम लोग को 2021 के आसपास ऑल परमिशंस इन हैंड आ चुके थे, ओके, विच एवर इज़ रिक्वायर्ड. सो बेसिकली ये एरिया को हम आईसी कॉलोनी बोलते हैं, एंड ये सबसे, वी आर इन द हार्ट ऑफ आईसी कॉलोनी. ये सबसे प्रीमियम एरिया है, बट जितना भी ये प्रीमियम है उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें फेस भी की हुई है, क्योंकि हमारे सामने एग्जैक्ट स्कूल ग्राउंड तो है ही है जो व्यू के लिए है, बट उसके पीछे केव है जिसका नाम है मनपेश्वर केव, ओके, जिसके लिए एक अलग से परमिशन लगती है, जिसे ASI के नाम से जाना जाता है. और ये लोकल परमिशन नहीं है, ये परमिशन आती है सेंट्रल दिल्ली से. और तो इसका यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ से एक फ़ाइल होता है जो साइन जाता है, और साइन वो फाइल को भेजता है दिल्ली. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिनिस्ट्री लेवल परमिशन. तो 2021 में हमारे पास सब परमिशंस आ चुके थे, बट एक ही परमिशन था जिसे हम नहीं ला पाए थे, और जो आया नहीं था बिकॉज इट्स अ वेरी बिग परमिशन. तो वो परमिशन है ASI का. ASI का ऐसा रूल है कि एनीथिंग विद इन 100 मीटर को डेवलप नहीं कर सकते. अभी हमारा जो प्लॉट है वो एग्जैक्टली 110 मीटर्स पे है. सो वी आर द क्लोजेस्ट प्रोजेक्ट इन मुंबई टू द केव. एक ये है. तो इसका परमिशन इज़ अ वेरी टफेस्ट परमिशन टू गेट, और ये परमिशन ऐसी है कि हर एक बिल्डर को नहीं लानी पड़ती है. ये जो भी एक हेरिटेज या मॉन्यूमेंट के साथ होता है, जुड़ा हुआ होता है, नियर टू होता है, उन्हें ही लानी पड़ती है. इट्स अ रेयर परमिशन. सो एज आई मैंशन 2021 परमिशन था, बट वी कुडंट स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन. रीज़न था ASI परमिशन 1. अभी उसी फेज पे सब लोग को लगा कि प्रोजेक्ट रुक गया है, क्योंकि ले इंसान को टू बी ऑनेस्ट ये समझता नहीं है परमिशन क्या है, और कोई भी परमिशन के बिना हम CC नहीं ला सकते या रेरा नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए IOD चाहिए, फिर रेरा आता है, सब परमिशन आते हैं, फिर हम काम चालू कर सकते हैं, और रेरा के बिना हम बेच नहीं सकते. बट इन बिटवीन ये हुआ कि ये 21 में जो परमिशन आ गए थे, इसके बीच में BMC आ चुकी थी.
अभी ये बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर था वो 30+ ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर था। उसके लिए एक ऑडिट करना पड़ता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट जिसे बोलते हैं। तो सोसाइटी ने वो किया। उसी दौरान उनको पता चला कि ये स्ट्रक्चर C1 कैटेगरी डिक्लेयर किया गया है। नाउ देयर आर डिफरेंट कैटेगरी टू अ स्ट्रक्चरल ऑडिट। जैसे C1 होता है वो लास्ट होता है जिससे आपको सोसाइटी से बाहर निकलना ही पड़ता है। दूसरे जो कैटेगरीज है उसमें आप रह सकते हो, रिपेयर्स करवा सकते हो, इट्स ए लिवेबल कंडीशन। क्योंकि आके 4 सीलिंग गिर रहे थे, सब टूटा फूटा था, तो C1 कैटेगरी डिक्लेयर किया गया। सोसाइटी को भी स्टिल एक सेट ऑफ मेंबर्स रहते हैं, उनको बिलीव नहीं हुआ, बोले ये गलत है, ये बिल्डर ने करवाया है। बहुत सारी जगह रूमर्स भी स्प्रेड हुई है करके बिल्डर ने ये करवाया। उन्होंने अपने एंड से भी दूसरी बार रीस्ट्रक्चरिंग करवाया, ऑडिट करवाया, तभी ये C1 कैटेगरी डिक्लेयर किया गया। अभी इसी दौरान BMC ने बोला 1 मंथ का नोटिस दिया, जो एक रूटीन रहता है उनका, और उसी रूटीन के और उनको 1 मंथ के अंदर टेनेंट्स को वेकेंट करना पड़ता है फ्लैट। कौन सी ईयर की बात? ये है 2021 की आसपास की बात है करके, क्योंकि 2022 में तो हमने हमारा कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया था। एंड अभी इसमें सब बहुत सारे जो कोऑपरेटिव लोग थे जिन्होंने कोऑपरेट किया वो सब निकल चुके थे। अभी फ्यू जो मेंबर्स थे उन्होंने मीडिया को बुलाया, थोड़ा शोबाजी किया, पुलिस आ चुके थे, बट ऑब्वियसली द कंट्रोल इज़ नॉट इन डेवलपर। और हर एक जगह पे डेवलपर को तो घिसा ही जाता है, बुलाया जाता है, माना ही जाता है करके। बट BMC ने अपना काम किया एंड वेरी स्मूथली दिस प्रोसेस वेंट आउट। हावेवर इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, लोकली बात कर करके बहुत सारी नेगेटिविटी स्प्रेड की है। बट एज अ डेवलपर आई बिलीव दैट उनसे अगेंस्ट फाइट करके कि उनसे वही रिवर्ट करना वो राइट सोल्यूशन नहीं है। वी प्लेड आउट वेरी साइलेंटली, वी बिलीव्ड इन गिविंग आउट आवर आउटपुट। सो एनी हाउ इन 2022 से नवंबर के आसपास जिस ये पूरे प्रोसेस को हमको 1.5 साल लगा, हमको ISI परमिशन आ गया विदिन 1.5 ईयर, 1.5 साल, जो इट्स नॉट ईजी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इसको 2 साल भी लगे और 2.5 साल भी लगे हैं। अभी इन बिटवीन इन्होंने हमारा केस भी डाला हुआ था जो हाई कोर्ट में गया, बट ये केस भी वो जो 11 सेट ऑफ मेंबर्स थे जो हमारे अगेंस्ट थे, बिकॉज उनका और इश्यूज था, खुद के पर्सनल रीजंस होते हैं सबके, तो उन्होंने केस हाई कोर्ट में डाला, बट वहाँ से भी वो लोग हार चुके थे। एंड हाई कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड अस कि आप क्या कर सकते हो, बिकॉज लोग अभी बाहर है, उनके पास रेंट नहीं है। तो अभी तो बिकॉज एज पर रेंट का भी एक रूल होता है, एग्रीमेंट में होता है कि रेंट आप तभी पे कर सकते हो जब आपका IOD आ चुका है, आपने डिमोलिशिंग चालू कर दिया है, आपका कंस्ट्रक्शन, तो दैट इज़ वेयर द डेवलपर इज़ एक्चुअली एलिजिबल टू पे द रेंट। बट अभी इसी दौरान जब BMC ने उनको बाहर डाल दिया था, व्हाट वी हैड टू डू, तो ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड, सो जो हमारे सर है मिस्टर जयेश चौहान, he paid 2 crores to the tenants as corpus early corpus fund, because obviously अभी रेंट तो पे नहीं कर सकते इस पर, सो वो हम लोग ने कर दिया। सो जो उन्होंने कर दिया करके फिर 2022 नवंबर के आसपास वी गॉट आवर ASI परमिशन। एंड आई रिमेंबर वो दिवाली का टाइम था, सब BMC ऑफिसर्स छुट्टी पे जाने वाले थे, एंड पता है छुट्टी तो अपने यहाँ पे लंबी चलती है, तो एनी हाउ सर मैनेज टू गेट CC इन जस्ट 1 डे। तो कल सब ऑफिस बंद होने वाले थे, आज इवनिंग को हम लोग को आया, नेक्स्ट डे द ऑफिस वाज सपोज टू गेट शट। उसी दौरान वी गॉट CC इन 1 डे, विच वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट इवन विद इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो ये हुआ। फिर दिसंबर 2022 में वी गॉट आवर RERA एंड देन वी स्टार्टेड सेलिंग आवर फ्लैट। बट दिस इज़ द होल जर्नी ऑफ आवर रीडेवलपमेंट, जिसके ऊपर नेगेटिविटी भी स्प्रेड हुई है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, सोशल मीडिया पे भी नाम नहीं अच्छा हुआ है। बट एंड ऑफ द डे ऐसा होता है ना, जो काम है वही दिखता है और वही बिकता है। टुडे इन 2023, so it's March, we started our first construction on 22/11/22. Today we are in March 24. We are on 10 slab work in progress. जो ये 13 माले का बिल्डिंग है उसमें से हम 10 स्लैब तो पहुँच भी चुके हैं। सो ये तो हर एक चीज़ में होता है अप एंड डाउन, बट एक चीज़ मैं श्योरली कन्वे करना चाहती हूँ कोई भी डेवलपर को, जो हम लोग ने भी किया हुआ है, कि प्लीज़ मेंटेन ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द सोसाइटी मेंबर, इफ़ आप कोई भी रीडेवलपमेंट ले रहे हो, बिटवीन द कमिटी। क्योंकि आज हमने जो ट्रांसपेरेंसी रखी है, वी डिड नॉट फाइट बैक। हम लोग ने कोई सोशल मीडिया पे जाके हम लोग ने आवाज़ नहीं बनाई है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो ये भी जो हमारे साथ जो नेगेटिव मेंबर्स थे
वो भी आज हमारे साथ आ चुके हैं, उन्होंने भी अपना पास साइन कर चुके हैं, एंड ऑल वी आर टुगेदर. सो जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड एवरीथिंग विल बी वेल. रीडेवलपमेंट में डेवलपर और सोसाइटी के सभी सदस्यों के बीच आपसी विश्वास होने के साथ साथ पारदर्शिता जैसा मूल मंत्र होना जरूरी है, तभी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सफलता मिलती है. यदि आप भी सेल्फ रीडेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें. हाउसिंग व रियल एस्टेट की तमाम बड़े मुद्दे और खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें. और आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.